Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, as you know that yesterday we have started the chapter Hank is the hero. Okay? So you know about the story of the Hank is the hero? There is any confusion? Oh, yesterday I have told you the title of the chapter, but I forgot to tell you the writer's name. So everybody listen, who has written this chapter? Deborah Len. Deborah Len. Deborah. Deborah Len is the writer of the chapter. So what is the title of the chapter? Hank is the hero is the title of the chapter, which is written by Deborah Len. Okay, clear? Now come to our story. As you all have listen the story that here is given a story of a 8 years old boy whose name was Hank, and he has one brother named Isaac, and the story is related that how he become a hero. Okay, yes, he was a kid, he was only 8 years old, but how had he done some courageous work and how he become a hero. So in this story you all have listened that yesterday Hank was where I have left there when Hank was giving the reply of the lady who was on the phone. जो लेडी फ़ोन पर थी उसकी बातों का रिप्लाई दे रहा था हैंक. एट दैट टाइम वी हैव एंड आवर चैप्टर. सो what he has replied, as you know that we have left our chapter here. Okay, that means here in last sentence he told his address that I live at 1203 Oak Street in Madison. It was his address. ये उसका address था. Now let us go through the page number 36. The lady on the phone told Hank not to hang up until help arrived at his door. लेडी क्या कहती है? एक्चुअली यस, 911 was an emergency number, and as he knew that her mother played a game with him and always made a call on 911, and his mother pretend as she was a operator and asked questions to the Hank. So Hank knew all the answers. In the same way he remembered all the things and called at the number 911, where a lady picked up the phone and he told his all problem to that lady, and then lady asked some questions to him and he replied very well, although he was feeling very nervous, and he was shaking, but he was giving reply clearly because he knew that it is very essential to give reply of all questions of the operator, otherwise she was unable to help her mother. Okay, so he has given all the reply in very clear tone, and he also told his address as his grandma मेड हिम लर्न. जो उसकी माँ ने उसे ग्रैंड माँ ने याद कराया था, तो उसने एड्रेस भी क्लियरली बता दिया. नाउ द लेडी ऑन द फोन टोल्ड हैंक. जो लेडी थी उसने हैंक से कहा फ़ोन पर कि तब तक फ़ोन को नहीं रखना, हैंक नॉट टू हैंग अप अंटिल हेल्प अराइव एट हिज डोर. जब तक कि हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए जो है आपके डोर तक ना पहुँचे तब तक फ़ोन नहीं रखना. एक्चुअली होता क्या है कि जैसे बच्चा छोटा है तो वो डर रहा होता है, तो वही लेडी कहती है अगर हमसे बात करता रहेगा और उसे लगेगा हम उसकी हेल्प करने जा रहे हैं तो उसका थोड़ा सा डर कम हो जाएगा. दैट्स वाई ही टोल्ड दैट यस डोंट कीप योर फ़ोन अंटिल वी अराइव एट योर डोर. जब तक हम आपके दरवाजे पे ना पहुँच जाए फ़ोन को नहीं रखना. सो हैंग स्टेड ऑन द फोन एंड सून 2 फायरमैन केम टू हेल्प. फिर क्या होता है कि वो फ़ोन को नहीं रखता है और जल्दी ही क्या होता है 2 फायरमैन उसके हेल्प के लिए आ जाते हैं. हैंग लेट देम इन व्हेन द लेडी ऑन द फोन सेड इट वॉज सेफ. फिर जो वो लेडी होती है वो बताती है कि आपके डोर पे 2 पर्सन्स आए हैं, 2 फायरमैन है, दे वर फायरमैन, एंड लेट देम
कम इनसाइड, उन्हें अंदर आने दो। तो जब लेडी उसे अश्योर करती है दैट एवरीथिंग इज़ ओके प्लीज़ लेट देम इनसाइड द हाउस, उन्हें आने दो, तो हैंक जो है वो उनको आने देता है क्योंकि लेडी ने बोला होता है, बिकॉज शी सेंड देम, उसने भेजा था। द मैन हेल्प्ड दियर मदर टू वेक अप, और जो वो मैन होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। एक्चुअली हेयर इज़ मैन गिवन बिकॉज हेयर आर 2 persons. If you tell about the man, it means a singular number, we are talking about the one, but if here is written men, that means we are talking about more than one person, that means more than one person, 2 3 4, okay, and we use E at the place of A, that means man singular के लिए यूज़ करता है जब हम एक आदमी की बात करते हैं, और जब वहाँ एक ही जगह E आ जाता है that means more than one, and here वो 2, यहाँ कितने थे 2 थे, इसलिए यहाँ पे मैन यूज़ किया गया है। तो वो मैन जो होते हैं उसकी माँ को उठाने में हेल्प करते हैं, मतलब जगाते हैं उसकी माँ को। एंड देन दे गेव हर सम ऑरेंज जूस, और उसे क्या देते हैं, ऑरेंज जूस देते हैं। फाइनली शी सैट, फाइनली क्या होता है वो बैठ जाती हैं। एंड बिगेन टू फील बेटर, और वो बहुत अच्छा फील करती हैं। शी स्माइल्ड, वो स्माइल करती हैं। एंड थैंक द फायरमैन, और फायरमैन को थैंक बोलती हैं। दे टोल्ड हर दैट हैंक वॉज, फायरमैन को जब वो थैंक यू बोलती हैं बिकॉज दे हेल्प्ड हर, सो दे टोल्ड हर, तो वो उससे कहते हैं हैंक वॉज अ हीरो बिकॉज ही हेल्प्ड सेव हिज मॉम्स लाइफ। तो वो कहते हैं कि ये जो हैंक है ना ये हीरो है क्योंकि इन्होंने ही अपनी माँ की लाइफ बचाने के लिए किया, हेल्प करी है माँ की लाइफ बचाने के लिए। लेटर द फायरमैन इनवाइटेड हैंक टू द फायर, और उसके बाद क्या करते, फायरमैन हैंक को इनवाइट करते बिकॉज दे वर वेरी इम्प्रेस्ड टू सी हिज करेज, बिकॉज ही वर वेरी इम्प्रेस्ड टू सी हिज करेज, सो दे यस तो वो क्या करते हैं, उसको फायरमैन जो होते हैं वो उसको बुलाते हैं। हैंक गेव हिम एन अवार्ड फॉर बीइंग अ हीरो, और जो वो होते हैं उसको क्या देते हैं, एक अवार्ड देते हैं। दे गेव हिम एन अवार्ड फॉर बीइंग अ हीरो, हीरो बनने का अवार्ड देते हैं, ठीक है, मतलब कि वो एक हीरो है तो उसके लिए उसको अवार्ड देते हैं। जिसमें आप अगर कोई अच्छा काम करते हो और आपको अवार्ड मिलता है तो आपको भी खुशी होती है ना। इन द सेम वे दे अवॉर्डेड द हैंक, है ना, तो हैंक को क्या करते हैं, अवार्ड देते हैं। फिर क्या होता है, दे गेव हिम एन अवार्ड फॉर बीइंग अ हीरो, एक हीरो बनने के लिए उसे अवार्ड देते हैं। बट हैंक डिड नॉट फील लाइक अ हीरो, लेकिन जो हैंक था ना वो हीरो की तरह फील नहीं कर रहा होता है। ही हैड बीन स्कैर्ड, वो डरा हुआ होता है। ही हैड बीन शेकिंग, वो काँप रहा होता है। ही जस्ट डिड, उसने क्या किया, वॉट ही हैड टू डू, ठीक है, वॉट ही हैड टू डू, उसने क्या, मतलब वो यही, मतलब अभी तक वो इस कॉन्शियस में नहीं होता है कि उसने क्या किया, ठीक है, उसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा बिकॉज ही वॉज वेरी अफ्रेड, क्योंकि वो बहुत डर गया था। देयर वॉज नो वन एल्स टू डू इट, उसे पता था कि वहाँ पे और कोई नहीं है जो कुछ करेगा। एंड ही वॉज जस्ट हैप्पी, और वो बहुत खुश था। ही न्यू वॉट टू डू, क्योंकि उसे पता था उसने क्या किया, इसलिए वो बहुत खुश था। सो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज हैप्पी हिज मदर वॉज ओके, वो इस बात से खुश था कि उसकी माँ ओके है। एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट ओके, और सारी चीज़ें ओके हैं। ही लर्नड दैट इन एन एमरजेंसी वी मस्ट आस्क फॉर हेल्प, और उसने उस दिन से ये चीज़ सीख ली थी, कभी भी इमरजेंसी हो तो हमें हेल्प के लिए बोलना चाहिए। मे बी ही शुड टीच हिज ब्रदर इसाक, और उसने अपने भाई को भी सिखाया हाउ ही वुड नो वॉट टू डू एज वेल, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें, क्योंकि इसाक भी सब कुछ देख रहा था। तो मे बी ही शुड टीच हिज ब्रदर, तो उसे अपने भाई को भी सिखाना चाहिए इसाक, सो ही वुड नो वॉट टू डू एज, जिससे वो भी ये चीज़ें जान सके कि कभी ऐसी कोई कंडीशन है तो हमें क्या करना चाहिए। नाउ लिसन द समरी ऑफ दिस चैप्टर इन शॉर्ट, है ना, विद इन few minutes I will tell you the summary of the chapter, so listen very carefully the summary of the chapter, okay, now listen the summary. Actually this story is related to a little boy whose name was Hank, and how he became a hero, and how he show his courage at the time of problem in his house. And his brother name was Isaac, and they both were kids. And one day they were playing
in the tree house. At that time it was started to rain. They came down to their house and entered to the kitchen and grabbed some cookies from the stove. After that they came, they started shouting, "Mom, mom." When they went inside the living room, then they saw their mom was lying on the floor. They thought why she was lying on the floor. Then they went near her and asked and start to shake her, but there was no reply. So they both were afraid. Actually, Isaac was younger brother and Hank was elder brother, but Hank was only 8 years old. So they both were afraid and Isaac started crying. But Hank has not lost his control, has not lost his courage, and remember what he will do. So after that he remembered that how his grandmother played with him by pretending 911 operator. So he made a call on that number. Actually that was an emergency number. 911 was an emergency number. Then he made a call to this number and a lady picked up his phone and start asking questions from him and made him assured that she will help him. After that he replied all the answers of the lady with whole courage. In reality he was very afraid, and at that time he was shaking, but he replied all the answers very well, in loud tone. So in this way he has told his address, his name, each and everything what happened in his house. And then lady sent 2 firemen in his house for their help, and they came in his house and they helped him to wake up her mother, and they gave her juice, orange juice. His mother woke up and thanked to the fireman to see the courageous work of Hank. The both firemen were very impressed with him. They thought that he is a little kid, only 8 years old kid, and he has done a very big work. So he said the Hank that you are a hero. After that they invited Hank in their firehouse and awarded him for being hero of the day. उसे मतलब हीरो बनने के लिए उन्होंने अवार्ड भी दिया. So in this way they उन्होंने उसका जो करेज था उसको मतलब इनकरेज किया. इन दिस वे दे इनकरेज द करेज ऑफ द हैंक, बट एट दैट टाइम हैंक वॉज वेरी afraid and he was not in conscious, but when he came in his conscious, then he realized that he has done a big work. So everyone learn from this story that we should never lose our courage, and always before afraid we should always think what we have to do. हमें what we should do, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए. या अपना करेज नहीं खोना चाहिए. वी शुड नॉट लॉस अवर करेज एंड ऑलवेज थिंक व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए. एज इन द सेम वे एज हैंक has done, and he also was a example for his brother Isaac, and he told that everybody should help in their home with their courage and with their mind. Okay, so this was the story of a courageous boy Hank. I hope that you all have understand the story. Now everybody go through the exercise. So everybody first write the date 29/8/2020. If you have any confusion in chapter explanation, then ask in comment box. Choose the correct option. Name of Hank's brother was. What was the name of the Hank's brother? So everybody take Isaac and also fill here. What made the brothers stop playing? Rain.
ओके किस वजह से उन्होंने खेलना बंद कर दिया था? बिकॉज ऑफ रेन. सो फर्स्ट आंसर इज इसैक एंड द सेकेंड वन इज रेन. नेक्स्ट, बोथ द ब्रदर्स वर प्लेइंग इन द, कहाँ खेल रहे थे? दे वर प्लेइंग इन द tree house. So also fill here tree house. Dash had taught Hank to play a game. Who has taught? Grandma. Who came to their rescue? Fireman came to their rescue. Next one is true false. Write T for true and F for false. Both boys climbed down using rope. क्या हो जाएगा? रोप से आए थे नीचे? नहीं, they climbed down with the help of ladder. So false. Hank thought mom was sleeping on the floor. True. पहले तो उन्होंने यही सोचा था कि क्योंकि उसने बोला ना क्यों सो रही हैं यहाँ पे. Hank Robinson lived 1203 Oak Street in Madison. True. Fireman made lemonade for Hank's mother. No. Fireman made orange juice for his mother. So false. Isaac was the hero of the day. No. False. So our answer are false, true, true, false, false. Correct. Come to the next exercise. As you can see, antonyms are also known to be opposite meaning word. As you have listened Vilom Shabd in Hindi. So in English we can say opposite words of antonyms are known as the Vilom Shabd. एंटोनियम क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड्स होते हैं. अपोजिट वर्ड किसी, जैसे गुड का बैड, ओके, क्लीन का डर्टी, ओके, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं. डार्क का लाइट, ये सारे क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड होते हैं, किसी चीज़ का उल्टा. जैसे वार्म कूल, फॉर एग्जांपल यू कैन सी वार्म कूल, जॉय ग्रीफ, बेस्ट वर्स्ट, यंग ओल्ड. ओके, सो यू हैव टू मैच द बबल्स. यहाँ पे आपको बबल्स दिए गए हैं. डाउन, क्विकली, आंसर, रिमेंबर, एंट्री, इंपॉर्टेंट. एंड हेयर आर गिवन दियर अपोजिट्स. इनके एंटोनिम्स, इनके अपोजिट्स दिए गए हैं, आपको मैच करना. आई हैव रिटन द नंबर बिकॉज इफ़ आई विल मैच देम देन यू विल बिकम कन्फ्यूज. आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा नंबर लिख दिया. बट यू हैव टू मैच. आप इसको मैच करेंगे. फर्स्ट क्या हो जाएगा? डाउन. डाउन, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ डाउन? अप. अप इज़ द अपोजिट ऑफ डाउन. क्विकली, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ क्विकली? क्विकली का क्या हो जाएगा? स्लोली. आंसर, आंसर अपोजिट ऑफ आंसर इज क्वेश्चन. देन रिमेंबर, रिमेंबर, फॉरगेट. एंट्री, एंट्री का एग्जिट. एंट्री मतलब कहीं पे अंदर आना, तो एग्जिट का बाहर जाना. इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट. यू हैव टू मैच लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ स्केल. ओके, सो एवरीबडी मैच दैट. नंबरिंग भी कर लीजिएगा और मैचिंग भी कर लीजिएगा. नेक्स्ट, नाउ here are given articles. As you all know, what are articles? A and the. A and the are articles. Okay, they are added before naming words. That means they are used before the noun. हम article को कहाँ use करते हैं? हमेशा before the noun. We use article before the noun. When a noun begins with, first you tell me how many alphabets are there in the English language. So everybody knows 26 alphabet. And how many consonant are there? Consonant कितने होते हैं? 5. How many vowel are there? 5. And how many consonant? 21. vowel हमारे 5 होते हैं, and consonant कितने होते हैं? 21 होते हैं. As you know, vowel कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U are the vowel numbers, and rest of all are known as कॉन्सोनेंट. 26 अल्फ़ाबेट्स में ए ई आई ओ को छोड़ के सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं. बट वी रिलेटेड एज अ साउंड, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स. हम उसकी साउंड के बारे में बात करें. अगर वॉवेल साउंड ए करके निकला है, बी नहीं होगा, बी कॉन्सोनेंट हो जाएगा. तो जहाँ पर वॉवेल साउंड आता है वी कैन यूज़ एन. जहाँ वॉवेल साउंड होता है वहाँ हम यूज़ करते हैं एन, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहाँ हम यूज़ करते हैं ए. ओके, When a noun begin with consonant we use a. The example a girl, आसन, a girl. अब गर्ल में कौन सा साउंड? ग क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, सो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? ए. नेक्स्ट वर्ड जैसे कह रहा है
सन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, जो ऐसे यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं, सन है, मून है, स्टार, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दा यूज़ करते हैं। व्हेन अ नाउन बिगिन विद वॉवेल, अगर वॉवेल से सपोज आपका प्रोनाउंसिएशन जो साउंड आ रहा है ए आ रहा है या ई आ रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे वॉवेल यूज़ करेंगे, दैट मीन्स एन यूज़ करेंगे। व्हेन अ नाउन बिगिन्स विद अ वॉवेल साउंड वी यूज़ एन। एग्जाम्पल एन एग, एग में क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, ए क्या हो गया, मतलब ये, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन एग। आर, इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आर पढ़ते, आर में क्या आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये आ रहा है ना, तो वी यूज़ वॉवेल, सो वी कैन यूज़ एन। हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, एन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इज़ ऑल्सो यूज्ड इफ़ द नाउन इज़ प्लूरल। जब व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंगुलर पर्सन देन वी यूज़ ए और एन। जब हम सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ए और एन यूज़ करते हैं। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग होती है, उनके लिए हम दा यूज़ करते हैं, और प्लूरल के लिए भी हम दा का यूज़ करते हैं। सपोज द बर्ड्स, द स्टूडेंट्स, प्लूरल है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट द वन थिंग दैट इज़ नोन एज, अगर बर्ड होता तो क्या हो जाता, अगर हम बर्ड की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर नंबर हो गया, हमने बर्ड्स कह दिया तो प्लूरल, हमने स्टूडेंट कहा तो सिंगुलर, हमने स्टूडेंट्स कहा तो प्लूरल। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज गिवन, circle the correct article given before each word and write them in the space provided। सबसे पहले आपको सर्कल करना है जहाँ पर आपको जो आपका करेक्ट वॉवेल है, दा या एन ऑरेंज। और देखिए यहाँ कोई प्लूरल तो दिया नहीं है, ना कोई स्पेसिफिक चीज़ दी है, ना कोई पर्टिकुलर चीज़ दी गई है, ठीक है। सो ऑरेंज, ओ साउंड निकल रहा है, एज यू कैन सी यहाँ पे कौन सा साउंड निकल रहा है, ओ साउंड निकल रहा है, तो ओ क्या हो जाएगा, ओ, ए ई आई ओ, वॉवेल हो जाएगा, तो वॉवेल इज एन। वॉवेल क्या हो जाएगा, वॉवेल यहाँ पे एन हो जाएगा। सो वी कैन सर्कल दैट, एन यहाँ पे हम लिख देंगे, एन हो जाएगा, देन आंसर क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज। ओके, सो वी विल राइट हेयर ऑरेंज, एन ऑरेंज, यहाँ पे ये एन हो जाएगा, एन ऑरेंज। सो अब हमको इसको करेक्ट करके लिखना भी है, यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑरेंज। नेक्स्ट, फायरमैन। अब फायरमैन के साथ हम क्या लगाएंगे, द फायरमैन। आ लेडी एन लेडी, लेडी के साथ एल कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ठीक है, ले यही तो आ रहा है लेडी, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, सो वी कैन सर्कल ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ लेडी। एरोप्लेन, एरोप्लेन वॉवेल साउंड, सो वी यूज़ एन सर्कल करेंगे, एन एरोप्लेन। अम्ब्रेला वॉवेल साउंड, एन यूज़ करेंगे, एन अम्ब्रेला। ट्री हाउस, ट्री, तो ट्री क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सो वी यूज़ ए, आ ट्री हाउस। कुकी, का, तो कॉन्सोनेंट साउंड, वी यूज़ ए, आ कुकी। सो आपके जो करेक्ट थे उन्हें हमें सर्कल करना है, एन, दा, आ, एन, आ, ठीक है, फिर इनको हमें इसमें लिखना भी है। दैट इज़ एनी कन्फ्यूजन। सो टुडे यू ऑल विल रीड द चैप्टर वेरी केयरफुल एंड ऑल्सो फिल द एक्सरसाइज ऑफ द बुक with the help of this. If you are unable to do the exercise, then do the exercise when I will provide you PDF. That is clear to you? Okay, thank you. Yes, that is enough for the today. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.